Hello everyone. This is Dhanasri Chaugle and you're watching Ganga Education. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss what is difference between partnership firm and the company. Before moving further, don't forget to subscribe my channel, hit on a bell icon and like my videos. I am going to differentiate these both provisions in Hindi and English language. So let's get started. First, partnership firm and company. आपने ये दोनों लॉ अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं. कंपनीज एक्ट इस सेमेस्टर में था. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है. फर्स्ट डिफरेंस, पार्टनरशिप फर्म इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 and a company is regulated by the Companies Act 2013. मतलब पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, ये दोनों के बारे में जो भी लीगल प्रोविजंस बताए गए हैं वो अपने अपने लॉज में है. जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के लिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और कंपनीज के लिए द कंपनीज एक्ट 2013 है. नेक्स्ट डिफरेंस, Section 4 of the Partnership Act 1932 defines a partnership firm and a company. Section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 defines company. Let's discuss what is definition of partnership firm. Definition of partnership firm. Definition of partnership: partner, firm and firm name. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively firm, and the name under which the business is carried on is called the firm name. The definition of partnership firm is given in section 4 of the Indian Partnership Act 1932, and as per the definition, it is relationship between the persons who have agreed to share the profit of the business. Means a firm is established for doing a particular business and they are agreed to share the profits which earned by that business, and such business is carried on by all or any of them acting for all. Means one of the partner is considered at the time of doing business as an agent of the firm for other partners, and other partners will be considered as a principal of the firm, and when they are carrying on such business on behalf of another partner, then there is an element of mutual agency. Now the persons who have entered into a partnership firm with one another are called individually as a partner and collectively as a firm, and the name under which the business is carried on is called as a firm name. हिंदी में इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कुछ लोग इकट्ठा जम के एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं उनमें समझौता होता है कि वो प्रॉफिट हम एक दूसरे में बांट के लेंगे. और ये जो बिजनेस कर रही है फर्म, वो या तो सभी पार्टनर मिलके करेंगे बिजनेस या उनमें से कोई एक पार्टनर भी सभी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस कर सकता है. और ये जो लोग हैं, पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में जब पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तब उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है और कलेक्टिवली उसको फर्म कहा जाता है. और जिस भी नाम से वो अपना बिजनेस कैरी करते हैं उसको फर्म नेम कहा जाता है. दैट इज डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Now let's discuss what is the definition of company. Company means a company incorporated under this act or any previous company law. Incorporated under this act means the Companies Act 2013, and any previous company law means before 2013 there was a company law of 1956, and that act was substituted by new act, that is the Companies Act 2013. And under the definition of company, the company means any company which is incorporated in previous law also. Means what? कंपनी का जो डेफिनेशन है जो 2013 के एक्ट में डिफाइन किया गया है उसमें कहा गया है कि कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो
कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, या जो भी कंपनी का प्रीवियस लॉ था उसके अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी. दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. नेक्स्ट, a partnership firm has no legal status. It is not juristic person. And the company has a legal status. It is a juristic person. What is mean by juristic person? Juristic persons means a body recognized by the law as being entitled to rights and duties in the same way as a natural or human person. The company, for example, is considered as a juristic person, but partnership firm is not considered as a juristic person. Next difference, partnership firm has no difference between its members and it, and in company differs from its members. मतलब जो पार्टनर्स है ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उनमें और पार्टनरशिप फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स है उनमें डिफरेंस है. नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट डिफरेंस. द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर्स, and in company, a property owned by a company is called active property. The share capital is divided into shares. The shareholder has passive property. The property owned by the company is not owned by its members. मतलब जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है, बट जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसे एक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और शेयर कैपिटल होता है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है, और जो शेयर होल्डर होता है उनकी वो पैसिव प्रॉपर्टी रहती है. प्रॉपर्टी जो कंपनी की है वो मेंबर की नहीं होती है. शेयर होल्डर अपना अपना शेयर होता है, उसका ही ओनर होता है. नेक्स्ट डिफरेंस, देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एट विल, particular partnership, etc. But all of them have similar characteristic features with slight variations. Means पार्टनरशिप के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एट विल. 8 में पढ़ा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. वैसे उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता है जैसे कि कंपनीज में होता है. कंपनीज का कैसे है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, एट्सेट्रा, हैविंग इट्स ओन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. मतलब कंपनीज के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनमें डिफ्रेंसिएशन रहता है, उनमें कुछ डिफरेंस रहता है. नेक्स्ट, ऑल पार्टनर्स हैव liability jointly and severally, and in company liability of company is limited. Shareholders liability is limited to the extent of his share only. He is not personally liable for the debts of the company except to the extent of his share. मतलब कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट लाइबिलिटी होती है एज वेल एज सेवरल लाइबिलिटी होती है. मतलब सब पार्टनर्स मिलके एक साथ किसी के प्रति लाइबल रहते हैं, और साथ ही में उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी रहती है, वो अकेले भी लाइबल होते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है. कंपनीज में कहा गया है कि कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ओनली, राइट. मतलब जो भी उनका शेयर है उसके एक्सटेंट ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी. ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट डिफरेंट, द मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनर्स एंड अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट डिफरेंस, the capital of partnership is divided into few parts and each partner contributes his parts or investment to the partnership. And in company, the share capitals of a company is divided into several small fractions. At
each of such fraction is called share. Next difference, the capital of partnership is divided into few parts and partner contributes his parts or investments to partnership. And in company, the share of capitals of company is divided into several small fractions. At each of such fraction is called share. मतलब कि जो भी कैपिटल होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक पार्टनर अपने हिस्से का जो भी पार्ट आता है वो कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. और कंपनीज में कैसे रहता है, जो भी कंपनी का कैपिटल है वो सेवरल स्मॉल फ्रैक्शंस में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और उस हिस्से को शेयर कहते हैं. और शेयर परचेस करने वाला होता है शेयर होल्डर. द नेक्स्ट डिफरेंस, अ पार्ट ऑफ पार्टनर cannot be easily transferable. A new partner can be included in a partnership only with the consent of all partners. And in company, the share can easily be transferable from one person to another. Means a partner cannot transfer his part to another person that much easily. A partner cannot be included in a firm without consent of all existing पार्टनर्स. मतलब एक पार्टनर अपना जो पार्ट है वो किसी और पर्सन को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपना पार्ट किसी और को ट्रांसफ़र करता है इट मीन्स कि वो उसकी जगह पे पार्टनरशिप फर्म में एज एन पार्टनर काम करेगा. बट उसको एज एन पार्टनर लेना है या नहीं लेना है ये डिपेंड करता है जो भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी सहमति देने या ना देने से. सो जो पार्ट है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी द शेयर कैन easily be transferable from one person to another. Remaining shareholders need not give their consent for such transfer. Transferability is the main characteristic feature of the company. मतलब कि जो भी शेयर होता है एक कंपनी में शेयर होल्डर का, वो किसी को भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है और जो बचे हुए शेयर होल्डर है उनको कोई भी सहमति देने की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है. तो जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर है वो मेन फीचर है ऑफ कंपनी. नेक्स्ट डिफरेंस, a partnership firm has no memorandum of articles. It can do whatever partners decide jointly. Even writing is not also necessary. Registration is also optional. मतलब ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी पार्टनरशिप रिटर्न में भी अगर बनता है एग्रीमेंट तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी या कंपलसरी नहीं है हर जगह पे. राइट, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है बट अदर स्टेट में ये भी ज़रूरी नहीं है. तो उनमें कोई भी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स जो है उसका लिखित होना ज़रूरी नहीं है. But in respect of company, the powers of company are restricted by its memorandum of articles. If the company goes beyond object clause of the memorandum of articles, such act becomes ultra vires and is void. मतलब कि जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शन होंगे वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से ही होंगे. उनका जो भी है वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है और जो भी इसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो वो अल्ट्रा वेरियस होगा, मतलब वॉइड होगा. नेक्स्ट डिफरेंस, अ पार्टनरशिप फर्म इज मैनेज्ड बाय all or some of the partners and a company is managed by its director, managing directors, secretary etc. who are appointed by the shareholders. मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका जो भी बिजनेस चल रहा है वो कौन मैनेज करेगा, या तो सभी पार्टनर मिलके या सभी के बिहाफ में कोई एक पार्टनर काम करेगा. और इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी जो भी डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या सेक्रेटरी है वो कंपनी का काम करेंगे. शेयर होल्डर्स उनकी अपॉइंटमेंट करती है. शेयर होल्डर्स को काम करने की ज़रूरत नहीं रहती. नेक्स्ट डिफरेंस, द डेब्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर्स.
The debts of company are not debts of its members, means जो भी पार्टनरशिप ने लोन लिया हुआ है, जो भी देना है, ड्यूज़ है पार्टनरशिप फर्म के, वो एक पार्टनर के इंडिविजुअल ड्यूज़ है ऐसे कंसिडर किया जाता है। बट जो कंपनी किसी और को कुछ देना है, राइट, मतलब लोन लिया है किसी से और वो कंपनी को पे करना है, तो वो मेंबर्स का लोन है ऐसे कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का जो मीनिंग है वो हमने कंपनीज एक्ट पढ़ते टाइम पढ़ा ही है। उसका मतलब ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, द कंपनी विल नॉट बी डिसॉल्व, इट विल बी कंटिन्यू। बट ये ऐसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। अगर इन केस ऑफ डेथ, insolvency, bankruptcy of any partner, the firm will be dissolved automatically. But in company firm, the company will be continue. Next difference, minimum numbers of members is 2 for a partnership firm and minimum number of members for private limited company is 2 and public limited company is 7. मतलब कि जो भी लॉ के हिसाब से मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है फॉर अ पार्टनरशिप फर्म वो है 2 पर्सन, मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर टू इस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म। और in respect of company, at least 2 members for a private limited company and 7 members for public limited company. That is statutory limit. Next, partnership firm need not maintain minute book, registers of members, etc. But in company, a company has to maintain several books, minute books, register of members, register of directors, etc. and default of which the company and its concerned officers are liable to be punishment। मतलब ये मैंडेटरी है, उनको ये जो बुक्स मेंशन किए गए हैं जैसे कि मिनट बुक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, ये मेंटेन करने ही हैं। अगर ये नहीं मेंटेन करते हैं तो दैट विल बी पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज अ पार्टनरशिप फर्म कैन easily be dissolved. A partnership at will can be dissolved at any time. A company cannot wind up so easily. It must be done under the supervision of the court. There are several procedures and restrictions in case of winding up of the company. We have studied how the firm is dissolved, means dissolution by agreement or compulsory dissolution, dissolution on happening of some event or dissolution by courts, etc. And it can be easily dissolved. Partnership at will can be dissolved by giving notice by one partner to another partner, that notice regarding his intention of dissolution of the firm. That's it. At that time the firm will be dissolved. But in respect of company, it cannot be easily wound up. It must be done under the supervision of the court and several procedures to be followed by the members to wind up the company. Next difference, insolvency of partnership effects on its partner. Every partner is personally and jointly liable. मतलब कि फर्म अगर इंसॉल्वेंट होती है तो जो पार्टनर्स हैं उनकी भी पर्सनल लायबिलिटी वहाँ पे अराइजेस होती ही है। यानी मतलब कि जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो जो भी पार्टनरशिप के डेब्ट्स है वो पे करने के लिए यूज होती है। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी डज नॉट इफेक्ट्स ऑन इट्स शेयर होल्डर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। एवरी शेयर होल्डर इज लाइबल फॉर द डेब्ट्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, नॉट एक्सीडिंग दैट। मतलब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट बनती है तो भी जो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उतनी ही रहेगी जितना कि उसका शेयर है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन partnership firm and company in respect of insolvency. Now last point, the condition of commencement of business within a particular time is not applicable in partnership, but in company may be wound up if it could not commence its business within 1 year after incorporation or in any year
completely। मतलब कि कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है, जब बनती है, तब उनके ऊपर एक क्लॉज लागू होता है कि जब भी उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तब उसके 1 साल के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू करना है। अगर वैसे नहीं होता है तो कंपनी वाउंड अप हो सकती है। मतलब बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अप टू देयर पार्टनर्स कि वो अपना बिजनेस कभी भी कर सकते हैं। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ नहीं है। ये डिफरेंस होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में और एक कंपनी में। बेसिक डिफरेंस होता है म्यूचुअल एजेंसी, मतलब एक पार्टनर सभी पार्टनर के बिहाफ में काम करता है। ये म्यूचुअल एजेंसी का जो एक एलिमेंट है वो दोनों को यानी पार्टनरशिप फर्म को और एक कंपनी को डिफ्रेंशिएट करता है। और बाकी के भी जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। That's it for today. I hope you like my video. In next video, we will discuss different provisions of Partnership Act. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Thank you.